Hello students, now I am going to continue with the chapter differentiation of 12th standard. Exercise 1.4, question number 3rd and example number 3rd. First and second example we have solved the example number 1 and 2. So we start with the example number 3rd. X is equals to t plus 1 upon t minus 1. This is the first equation we are given. And the second equation, that is y is equals to t minus 1 upon t plus 1. And we have to prove that y square plus dy by dx is equals to 0. So first we are going to solve this example by multiplying equation 1 and 2. So here is equation 1 and here is equation 2. So first we take the product of this 1 and 2. So what we get? So x into y is equals to c, this t plus 1 upon t minus 1 into the right side of this second equation, that is t minus 1 upon t plus 1. So t minus 1 get cancelled, and this t plus 1 also get cancelled. So there is no 1 means there is 1. So finally we get that is x into y is equals to 1. And for our convenience, here we are going to find out the value of x. So x is equals to 1 upon y, and we say that is equation A. From this equation we just find the value of x, that is this y goes to this side, so 1 upon y, and we say that is this is equation number A. Now here again, that is differentiating with respect to x. So what we get? So here is u into v rule. So x into derivative of y, that is dy by dx, plus y as it is into derivative of x is 1, and the derivative of constant is 0. So here we get x into dy by dx plus y is equals to 0. And we have to prove that y square plus dy by dx is equals to 0. So here in place of x we have to put down the value of x, that is this one. X is equals to 1 upon y, so we put here, instead of writing x we write here 1 upon y. So here I write that is 1 upon y. Just see, our equation is this one, and we are going to put down the value of x as a 1 upon y. So what we get? So here instead of writing x we write here 1 upon y dy by dx as it is, and plus y is also as it is equals to 0. So putting the value of x. So now we have to remove this y in the denominator because we want here y square. So multiplying each term by y. So here also we multiply by y. So y will get cancelled. Plus this y into y, so we will get here y square is equals to 0. And just we rearrange the terms because हमें जैसे दिया गया है वैसे ही हम उसको convert करेंगे. So y square plus dy by dx is equals to 0. So hence proved. Now see the example number 4. So there is also more convergence. So see, the example given is x is equals to a cos cube t and y is equals to a sin cube t, and we have to prove that dy by dx is equals to minus y upon x raised to 1 by 3. So this is our prove that. Now see what we can do here. So x upon a cos cube t. So how we can convert this? So see, मैंने ऊपर लिखा है वो, ये जो a यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है वो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा. So we get here x upon a is equals to cos cube t, and after that we taking the cube root. Why we take the cube root? Because in our prove that there is a power, that is 1 by 3. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट? सो कॉस क्यूब टी का होगा कॉस टी, और इसका क्यूब रूट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एक्स अपॉन ए रेज टू 1 बाय 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स अपॉन ए. सिमिलरली हम y को भी ऐसा चेंज करेंगे. सो a यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा. सो वी गेट हियर साइन क्यूब टी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए, एंड अगेन टेकिंग क्यूब रूट वी गेट हियर साइन टी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन ए रेज टू 1 बाय 3, दैट इज क्यूब रूट ऑफ वाई अपॉन ए. So we say this is equation B and this one is equation A. Now we are going to start with the example. So dx by dt, we are taking the differentiation, that is taking the derivative with respect to t. So here we get dx by dt, a is as it is since it is a constant. Cos cube t, मतलब यहाँ पे क्या है, cos t bracket cube. So which formula we are going to apply? That is x raised to n. What is the derivative of x raised to n? N into x raised to n minus 1. So similar formula we have to apply here. So 3 is in front of cos we write 3,
cos t raised to 3 minus 1, that is square. So we can write this like this one also, that is 3 cos square t into जिसके लिए हमने x कंसिडर किया था, मैंने अभी बोला कि ये हम कैसे लिख सकते हैं, that is cos t ब्रैकेट q, ऐसे हम लिखते हैं. इसके लिए हमने x कंसिडर किया था. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x मतलब x का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी, एंड सो यही टर्म्स हमने रीअरेंज करके लिखे हैं. सो माइनस 3 एज इट इज a देन साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी. सिमिलरली हम y को भी ऐसे कन्वर्ट करेंगे. सो टेकिंग द डेरिवेटिव दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, same application we use here. So dy by dt is equals to a as it is. Here also we write this sin t like this way, that is sin t bracket q, and इसको हम x कंसिडर करने वाले हैं. सो इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट करती हूँ. तो sin t ब्रैकेट q, सो इसके लिए हमने x कंसिडर किया, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया. सो n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. सो 3 इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू जिसके लिए हमने x कंसिडर किया था, किसके लिए किया था, साइन के लिए. सो साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस. एंड सो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी. एंड नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी. सो व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी अपॉन यहाँ पे क्या है, minus 3a sin t into cos square t. Now see, we remove this 3a, one sign is cancelled with this one sign, cos also cancelled with this one cos. So remaining terms are minus sin t upon cos t. And now this is the time to put down the value of sin and cos that we will find out here. So what is the value of sin? Sin t is nothing but y upon a raised to 1 by 3, and cos t मतलब x upon a raised to 1 by 3. So that we are going to put down this value here. So dy by dx is equals to, yes, putting the value of sin t, that is y upon a raised to 1 by 3 into, actually upon है मैंने into करके लिया. सो हम cos का जो वैल्यू है x upon a वो हम इन्वर्स करके लिखेंगे, that is a upon x. सो यहाँ पे मैंने a upon x किया raised to 1 by 3. So we are writing all the terms in one bracket and raised to 1 by 3 because दोनों का पावर सेम है. So y upon a into a upon x, a cancel, and so we get finally that is minus y upon x raised to 1 by 3. So this is the answer. So the main thing in this example is firstly we have to find out the values of cos and sin. Otherwise you can't find out the value. So first of all you have to find out the values of sin t or cos t. So next one, that is the example number 5. So x is equals to 2 cos raised to 4 in bracket t plus 3, and y is equals to 3 sin raised to 4 t plus 3, and we have to show that dy by dx is equals to minus root 3y upon 2x. Now see again, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, that is sin raised to 4 t plus 3. यहाँ पर भी cos raised to 4 t plus 3 means angle is the same. Yes, so here we have to know the identity, that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So we are going to use this identity in this example. So how we can use here? So यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई वो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा. सो x अपॉन 2 वी गेट हियर cos रेस टू 4 t plus 3. सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, दैट इज y अपॉन 3 sin रेस टू 4 t plus 3. And for both we taking the square root of both sides for both one. यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, यहाँ पे भी हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे. सो व्हाट वी गेट, सो इन रूट वी गेट x बाय 2. ये रेस टू 4 है वो क्या होगा, स्क्वायर होगा. सो ये सिंगल एंगल है, यहाँ पे आप देख लो t plus 3. सेम यहाँ पे होगा, दैट इज रूट y अपॉन 3 साइन स्क्वायर t plus 3. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. Now we are going to add these two. Why are we going to add? Because we are going to apply this identity here in which we see that is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. मतलब दोनों एंगल सेम है और स्क्वायर है साइन का कॉस का, तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है. तो ऐसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज साइन स्क्वायर टी प्लस 3 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, मतलब एंगल तो सेम है
t प्लस थ्री टी प्लस थ्री। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हम दोनों का एडिशन किया है तो यहाँ का भी एडिशन होगा, दैट इज रूट एक्स अपॉन रूट टू प्लस रूट वाई अपॉन रूट थ्री। जस्ट वी गोइंग टू सेपरेट द रूट्स and you know that is what is the value of this one, that is sin square theta. So this is our theta, sin square theta plus cos square theta is equals to, it is always 1, so I write here 1. And so we taking this one, that is root x upon root 2 plus root y upon root 3 is equals to 1. So the value of all these two terms is 1. And now we are going to solve this one. So here we get, that is taking the LCM, that is root 2 into root 3, taking cross we get here root 3 into root x plus root y into root 2 is equals to 1. And so ये जो रूट 2 इंटू रूट 3 है वो रूट 6 होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर वो रूट 6 होगा. एंड नाउ वी गोइंग टू डिफ्रेंशिएट विथ x, differentiating with respect to x, so what we get here? So this one is the constant which is as it is. What is the derivative of root x? It is 1 upon 2 root x plus root 2 is as it is, एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट वाई एंड वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाय डी एक्स, एंड यहाँ का ये जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव रहता है 0. नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप. नाउ वी जस्ट गोइंग टू मूव दिस क्वांटिटी टू राइट हैंड साइड. सो वी गेट हियर दैट इज रूट 2 अपॉन 2 रूट वाई अपॉन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट एक्स. Since we are moving it into the right side, so there is a minus sign. Now we have to find out the value of dy by dx. So this quantity is as it is into ये quantity यहाँ पे जाके inverse होगी, so 2 root y upon root 2. Again this 2 will get cancelled, so in the numerator what we get? So root 3 into root y, मतलब 1 root में भी हम दोनों को लिख सकते हैं. So y root 3y upon 2 root x, that is both the numbers are in root, so we write one root for both of them, and we get here that is root 2x. So answer is minus root 3y upon root 2x. That is we have to prove. Now see the example number 6. Now in example number 6 we are given that is x is equals to log 1 plus t square. For that we consider it as a x, and यहाँ पे क्या दिया है, y is equals to t minus tan inverse t, and we have to prove that dy by dx is equals to root e raised to x minus 1 upon 2. Now see for both of them we have to write down that is differentiating with respect to t. Now see यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, that is dx by dt is equals to, ये इसके लिए हमने x कंसिडर किया था. So what is the derivative of log x? It is 1 upon x, so 1 upon 1 प्लस टी स्क्वायर, बिकॉज ये टोटल ब्रैकेट हमने x करके कंसिडर किया था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x. सो x क्या है, ये ब्रैकेट है जिसमें क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, सो द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड द डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज 2t. सो फाइनली वी गेट हियर दैट इज dx by dt is equals to 2t upon 1 plus t square. So this is my equation number 1. And now see the equation number 2. सो यहाँ पे हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज t माइनस tan इनवर्स t. So dy by dt, the derivative of t is 1 minus the derivative of tan inverse t is 1 upon 1 plus t square. Now the LCM is 1 plus t square. Now taking cross 1 plus t square minus 1, so 1 get cancelled, and finally we get t square upon 1 plus t square. So this is equation number 2. Now we are going to find out the value from the given equation. So we are given that is x is equals to log 1 plus t square. I write it again. X is equals to log 1 plus t square, where the base of the log is e. Now we are going to convert these into the indices because it is in the log form, and now we have to convert it into indices form. So e raised to x is equals to 1 plus t square. So it is the indices form of this one. Now we move this 1 to this side, so we will get e raised to x minus 1 is equals to t square, and now we are going to find out the value of t, that is root, because taking square root of both sides we get here root is e raised to x minus 1. And now our next step, that is we have to find out the value of dy by dx. So dy by dx is equals to dy by dt upon dx by dt. So what is the value of dy by dt? So see here t square upon 1 plus t square upon, so what is the value of dx by dt? 2t upon 1 plus t square.
So 1 plus t square cancel with this 1 plus t square. So the remaining terms are t square upon 2t. Now this t is cancelled with this 1t. So finally we get here t upon 2. सो यहाँ पे हमने जो t की वैल्यू पहले से फाइंड आउट करके रखी है वो हम यहाँ पे पुट डाउन करेंगे. मतलब अगर हम इतना ही सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ इतना ही आंसर मिलेगा, दैट इज़ t अपॉन 2. एंड बट हमें क्या प्रूव करना है, जो 2 प्रूव है हमारा उसमें है e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2. सो हमें t का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो हमने यहाँ पे किया है, t का वैल्यू है रूट e रेज़ टू x माइनस 1. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू हियर, e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2 इज एज इट इज. And so this is my answer. Now see the example number 7. So 7 में हमें क्या दिया, देखो ये भी बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है. So x is equals to sin inverse e raised to t and y is equals to root 1 minus e raised to 2t. And now we have to show that sin x plus dy by dx is equals to 0. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है. आपको पता है कि ये इस टाइप के फॉर्मूलेज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सॉल्व किए थे. तो साइन इनवर्स अंदर अगर साइन होगा तो हमें इसका आंसर बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया है. वी कंसिडर दैट इज e रेज़ टू t इज इक्वल्स टू साइन थीटा. क्यों साइन थीटा लिया है, बिकॉज यहाँ पे बाहर भी साइन इनवर्स है. सो हमने यहाँ पे साइन थीटा कंसिडर किया है. सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू व्हाट वी गेट, सो x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग e रेज़ टू t वी राइट हियर साइन थीटा. सिमिलरली ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो दोनों के लिए है. सो y इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस यहाँ पे c e रेज़ टू t. हमें सिर्फ e रेज़ टू t का वैल्यू पुट डाउन करना है विच इज़ नथिंग बट द साइन थीटा. बट यहाँ पे 2 भी है, मतलब हमें यहाँ पर भी 2 लिखना है. सो वी गेट हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो इन रूट वी गेट हियर कॉस स्क्वायर थीटा. आफ्टर रिमूविंग दिस रूट और टेकिंग द स्क्वायर रूट वी गेट हियर y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. नाउ सी यहाँ पे आपको तो ये फॉर्मूला पता है. सो व्हाट इज द आंसर, x इज इक्वल्स टू थीटा. एंड नाउ वी डिफ्रेंशिएट बोथ द इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो यहाँ पे हमें मिलेगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू 1 सिंस वी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा. एंड यहाँ पे हमें मिलेगा दैट इज dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा. एंड नाउ वी अप्लाइंग द फॉर्मूला दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा. सो dy बाय डी थीटा इज माइनस साइन थीटा अपॉन 1, मतलब हमें मिला दैट इज dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. नाउ सी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो साइन थीटा राइट साइड को उसको हमने लेफ्ट साइड को लिया. सो इट विल बिकम प्लस. सो साइन थीटा प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0. एंड नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. नाउ सी हियर व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट द e रेज़ टू t. सो यहाँ पे हमने लिखा e रेज़ टू t प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0. बट हमें क्या दिया है, देखो मैं फिर से यहाँ पे लिखा है मैंने, जो एग्जाम्पल हमें दिया है x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स e रेज़ टू t. यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स e रेज़ टू t, जो हमें दिया है वो हमने यहाँ पे लिखा है. नाउ वी मूविंग दिस साइन टू दिस साइड. सो व्हाट वी गेट, साइन x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू t. एंड नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन a, मतलब हमने e रेज़ टू t का वैल्यू जो फाइंड आउट किया है वो हमें यहाँ पे पुट डाउन करना है. सो a इज इक्वल्स टू e रेज़ टू t. सो यहाँ पे साइन x e रेज़ टू t का वैल्यू हमने पुट डाउन किया, साइन x प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0. एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू प्रूव. देखो यहाँ तक जब हम आए थे तो यहाँ पे साइन थीटा था, साइन थीटा प्लस dy बाय dx इज इक्वल्स टू. तो आपको ये लग सकता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है बिकॉज यहाँ पे साइन x है और यहाँ पे साइन थीटा है. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस साइन थीटा इनटू साइन x. तो हमने कैसे किया, हमने पहले साइन थीटा का वैल्यू पुट डाउन किया, दैट इज e रेज़ टू t. आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ e रेज़ टू t बाय टेकिंग द ओरिजिनल एग्जाम्पल. सो साइन को हमने यहाँ पे मूव किया. सो साइन x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू t एंड आफ्टर दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ e रेज़ टू t, दैट इज साइन x. सो दिस इज द आवर आंसर. नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज 8th एग्जाम्पल.
x is equals to 2 bt upon 1 plus t square and y is equals to a into bracket 1 minus t square upon 1 plus t square, and we have to show that dx by dy. So see carefully, here we are given not dy by dx, here we are given dx by dy is equals to minus b square y upon a square x. सो सी आप थोड़ा सा इसको केयरफुली देखेंगे, ये बी यहाँ पे नहीं है, ऐसा थोड़ा सा सोच लो आप, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा दैट इज़ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। यहाँ पे तो आप दिख रहा है आपको दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। सो प्रीवियसली आई गिव यू द फॉर्मूलाज ऑफ साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा एंड टैन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन। सो ये अगर आप इसको थोड़ा सा देख लोगे तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा। यस, इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ टी एज अ टैन थीटा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, इफ़ वी पुट टी इज इक्वल्स टू टैन थीटा। सो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं दैट इज टी इज इक्वल्स टू टैन थीटा। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी व्हाट वी गेट, एक्स इज इक्वल्स टू 2b पुट टी इज इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली वाई पे भी हम करने वाले दैट इज a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो b है यहाँ आपका थोड़ा सा हम साइड में लेंगे, सो 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी ए साइड को लिखा है हमने। ये जो फॉर्मूला है वो कॉस टू थीटा का है और ये जो टोटल फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये टोटल फॉर्मूला जो है वो साइन टू थीटा का है। तो हम यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, मतलब साइन टू थीटा वन साइड को लेंगे, सो एक्स अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा, यहाँ पे y अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दोनों एंगल सेम है। सो अगेन आपको ये जो आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आप लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, सो हम स्क्वेयर भी करेंगे एट ए टाइम, एडिशन भी करेंगे। सो ये इसका स्क्वेयर उसके एडिशन हमने की है यहाँ पे, प्लस नाउ इसका भी स्क्वेयर करके हम एडिशन करेंगे। सो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सो यहाँ पे 2 थीटा। तो आपको पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका आंसर 1 रहता है। अगर एंगल सेम हो तो आंसर 1 होता है। सो ये भी एंगल सेम है, यहाँ पर भी एंगल सेम है, सो इसका आंसर है 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गेट हियर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर की वो हम यहाँ पे मूव करेंगे। सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट वी गेट हियर? So this one is the constant, so it is as it is. The derivative of x square is 2x plus b square is as it is. Now the derivative of y square, that is 2y into dy by dx, and it is the constant, so the derivative of constant is 0. Now see, b square into 2y dy by dx is equals to, we moving this quantity, that is a square into 2x to this side, so we get here minus a square into 2x. Now dy by dx is equals to, ये क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी, ये क्वांटिटी यहाँ पे आके डिवाइड होगी, सो 2 विल गेट कैंसल एंड फाइनली वी गेट हियर माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई। बट दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बट हमें हमारे एग्जाम्पल में क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। सो टेकिंग इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स, ये जो है उसका हम इनवर्स लेने वाले। सो वी गेट हियर डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर। So hence we prove, and this is the end of the question number 3 of exercise 1.3, and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.